For people who are interested in GST, I'd suggest you take the seats up front. There's a lot of matter which is going to be put up on the screen over here. Don't be shy, it's not expensive to sit up front. So I believe most of us are connected with the print industry. Anybody not from the print industry over here? Then you're in the wrong room. Film industry, okay. So I want to tell you about SAS. Anybody's heard about SAS? Yeah, it's like SOS. It's as important as SOS. The BMP has launched something which is called Sikho or Samjho, SAS. Now, everybody's aware of SAS? I saw one hand go up over here. Anybody else? Okay, so there are a couple of you who are aware, but most of you aren't. And that's the status of our industry at the moment. We don't bother about education, and we don't want to educate our people. We want to buy multi-million-dollar machines, but we don't want to educate our people to use those machines properly. So a couple of years back, BMPA, along with Print Week, SIES, and GIPT, we started these workshops which would educate our workers in regional languages. And we've done several workshops. I think 20 odd workshops have already been done. But every month, whenever we have these workshops, we have to literally keep reminding people, requesting people to send their workforce. I don't know what the problem is, but a lot of people fear that their people will be taken away from these conferences or these workshops, or that we don't have the time to educate our people. But believe me, I think we're making a big mistake. If we don't educate our people now, it's going to be even more difficult in the future. The reason is, and I think Puneet will agree with me, is that all mundane tasks are going to be done by machines in the future. Human beings are only going to do creative tasks, or ones which require them to adapt to situations. Otherwise, all mathematical tasks, all tasks which are pick and place, will be done by machines. If we don't make our men and our workforce think in that way, because today they're just working like pick and place, and those pick and place guys will all be replaced by robots. We have to make them think creative, and for that they need to think with an open mind. They need to come to such workshops. They need to get at least first a habit of learning, which today they don't have. So please make it a point to check your emails, the SMSs we send out for these Sikho or Samjho workshops. Today, and also we insist that the speakers speak in Hindi, which is the language of the workers. They can understand it. People who have been there, there are several over here who send their workforce. There are so many owners also who come because they are so passionate that they learn with their workforce. So talk to your friends, find out if it's useful or not. I'm telling you it's useful. You must try and give fuel to this fire that the BMP has started. So today we've come to hear another huge issue, which is GST. And there's a lot of confusion. And most of the time what's happening is that we're believing this fellow, this encyclopedia that we have with us. It's called Encyclopedia WhatsApp. Every day we have new WhatsApp messages which come to us which proclaim that GST is this and GST is that. And we tend to believe it, and without even considering or confirming it, we forward it to another 500 people, and that's how everybody gets to know little or wrong information. So what we did is that we waited at the BMPA for the time to be ripe, because in the past couple of months there was a lot of confusion. Now a lot of that confusion has been cleared, and who we've got today is he's a senior manager of product excellence at Tally Solutions. So Tally is a partner with the GST guys who are implementing GST, because GST is a lot of technology and software is involved in GST. So they had to get someone to help them, the guys who wanted to implement it. So one of the people they've chosen is Tally. So Darshan Shah is the senior manager of product excellence at Tally Solutions, and he's had 11 years of experience in Tally in various departments. He's also a celebrated orator in business circles as well as in CA study circles, and has conducted breakthrough seminars for business owners all across India. He's conducted over 90 sessions for CAs in WIRC, don't ask me what that is, in past 6 years.
and he spearheaded the business advisory program exclusively for chartered accountants across the West Zone. So we're going to request Darshan Bhai to talk to us in simple language because we're not chartered accountants, and share with us your gyan. We're very, very confused as far as GST goes. All over to you. So 1.5 hours, non-stop? As people say. Okay, so we'll give our question answer time after the session. Thank you very much. Great, thank you. Give him a warm welcome, please. Good evening. Good evening. Okay, thank you. So yes, preamble has been said for me that मेरे बारे में काफ़ी कुछ कहा. ओके, तो सिंपल ये है कि मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट इंसान हूँ. ओके, यहाँ पे बॉम्बे में पला बड़ा हूँ. सरनेम में शाह है, इसलिए गुजराती थोड़ा बहुत जानता हूँ. ओके, और बॉम्बे में रहने के बाद मीन्स हिंदी थोड़ी बॉम्बे स्टाइल में रहेगी. तो आज का सेशन मीन्स 99% इस तरह से रहेगा कि आप एक ले पर्सन से सुन रहे हैं. ओके, इन अ ले लैंग्वेज सेशन. ओके, जीएसटी जितना सिंपल कर सका हूँ उतना सिंपल किया है. ओके, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ है इसके अंदर. ओके, जीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, ओके, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, ये सब काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजीज़ है जिसके बारे में हम लोग आज हमारे बिजनेस, हमारा डे टू डे वर्किंग के अंदर किस तरह से चेंजेस होने वाले हैं, या मुझे अगर 1 जुलाई से जो स्टार्ट करना है, हाउ शुड आई स्टार्ट विद दैट. ओके, दैट इज़ द सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू डील टुडे. Okay, so about my language and perception about like what I'm going to deliver is clear now. Okay, see, I'm not going deep inside the law. मैं कोई लॉ के अंदर डीप नहीं जा रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको ये कहूँ कि प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स और या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है मीन्स थोड़े भारी भारी चीज़ें मीन्स अंदर नहीं जाने वाला हूँ. लेकिन हाँ, मैं कुछ अच्छी तरह से रीड कर सकूँ. ओके, वेदर इट इज़ न्यूज़पेपर, वेदर इट इज़ सम ब्लॉग्स, ओके, या फिर कोई स्पीकर को रीड करना चाहता हूँ यूट्यूब पे, तो आप डेफिनेटली आज के सेशन के बाद वो बहुत अच्छी तरह से रीड कर पाओगे. शायद ये एक्सपेक्टेशन सही रहेगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी इनटू टैली. ओके, विथ जीएसटी. इट्स अ प्योर प्रेजेंटेशंस. आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू शो यू ऑन टैली. लॉ बाहर नहीं आया तो मैं टैली के अंदर क्या मॉडिफाई करूँ. करेक्ट है? हाँ, लेकिन मेरे पास काफ़ी कुछ कैपेबिलिटीज़ है टैली के अंदर जो जीएसटी के अंदर मैच हो सकता है. ओके, सो दैट एनी टाइम यू माइट बी यूजिंग टैली. ओके, यू आर नॉट यूजिंग टैली बट यू कैन एनी टाइम कॉल अप आवर एनी चैनल पार्टनर्स हु कैन हेल्प यू टू रियली अंडरस्टैंड कि टैली के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स है जो आज मेरे लिए एप्लीकेबल है, स्पेशली फॉर द वैट सब्जेक्ट, एंड हाउ इट इज़ कंपैटिबल विद द जीएसटी, दैट वी कैन डिस्कस एट योर टेबल रादर दैन एट दिस फोरम. Okay, so let's start our journey into the GST regime. Okay, with small understanding, clarifications about like कि ये जो terminologies use हुए हैं, okay, उसका exact मेरी language में क्या समझ में आ रहा है. ठीक है? Okay, session कुछ करीबन हम लोग 1.5 hour का रखते हैं. Okay, so it's 4:30 as of now. Okay, we'll expect that कि हम लोग 5:45 तक कंप्लीट करें so that we can have a QA session. लेकिन QA session हमारा मिड में भी चल सकता है. If I have answer right now at that point of time, I'll give it to you. And if the answer is getting covered in my future slides, then I'll take it when that slides come. Fair enough? Great. So let's start up. Yes, I have my colleague Ronak with me, who is going to share podium with me, and he is going to help me about like if I stagger somewhere, then he is going to help me. कि भाई wherever आप मैं deviate हो जाता हूँ तो वो मुझे वापस लेके आते हैं. Okay, थोड़ा भावुक हो जाता हूँ. Okay, तो yes, आज के सेशन में हम लोग किस तरह से कवर कर रहे हैं कि what is GST, why GST, what is VAT, okay, means the current regime, and what is the GST regime would look like. Okay, then we talk about the registration, invoice matching, input credit. Okay, registrations काफ़ी लोग ने किया रहेगा यहाँ पे, पक्का 100%. महाराष्ट्र इज सेकेंड लीडिंग स्टेट. मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ. ओके, अगर नंबर 1 पे आता था तो ज़्यादा खुशी होती थी. Okay, but yes, we should definitely see that ki yes, our volume is definitely big, so maybe, but in that sense, definitely becoming 2 also is not a bad thing. Okay, in terms of percentage. So yes, Maharashtra is one of the leading states in the registration onto GST. Basically, I want to carry one point from here, that we people over here, okay, are welcoming GST. Okay, that is the major intent behind that percentile.
Now, we'll talk about some input credit on expenses, illustrations, and some business practices and technology which can be installed at my place to understand that कि how my working would be smoothen enough. Okay, जैसे कि वो जो return filing के लिए है, वैसे यहाँ से कितने लोग return file कर रहे हैं खुद? Okay, I know there are business owners over here. Okay, you are outsourcing either to your team members or you are outsourcing to the chartered accountants or the tax consultant. Fair enough? Okay, but definitely you will be playing some role in your return filing. Okay, अगर chartered accountant भी अगर कुछ information मांगते हैं तो हमें कुछ provide करनी पड़ेगी, right? If at all we want to see that कि tax consultant है या फिर chartered accountant है, they will be asking, fetching some information from us. Okay, so I have to provide them. That means I'm also participating into return filing, right? Without our raw data, what he will file. Okay, लेकिन हम लोग आज थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि मीन्स करंटली क्या चल रहा है और जीएसटी रेजिम में क्या होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑन विथ अंडरस्टैंडिंग अबाउट जीएसटी. यस, न्यूज़पेपर्स टॉक्स लॉट अबाउट इट. व्हाट इट मीन्स, आज मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर में एक पेज या एक आर्टिकल तो डेफिनेटली रहेगा. सो let's talk about, it talks about one nation, one tax. One nation, one tax. What does that mean? No other tax? Indirect? Okay. इनकम टैक्स तो है अलग से. ओके, वैसे देखने जाए तो काफी सारे टैक्सेस है जो जीएसटी के रेजिम में अभी भी आए नहीं है. ओके, तो ये जरूरी है कि हम लोग आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वन नेशन वन टैक्स के बारे में बोल रहे हैं. वैसे रेट देखने जाएंगे तो 0% भी है, 5% भी है, 12% भी है, 18% भी है और 28% भी है. सो हाउ दिस वन नेशन वन टैक्स? डिस्क्रिमिनेशन. ओके, वापस और एक सब्जेक्ट आ जाता है, शायद आप लोग ने नाम सुना रहेगा, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, यूटी जीएसटी. बाप रे. हाँ, सो दीज आर डिफरेंट टैक्सेस बट स्टिल वन नेशन वन टैक्स. यस, इट्स वन नेशन वन टैक्स. यानी कि एक बिजनेस ओनर के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे मल्टीपल टैक्स लॉज या टैक्स चीज़ों को हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्सेस को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा. जैसे कि अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझे वैट के लिए भी रजिस्टर करना पड़ता है, एक्साइज के लिए भी रजिस्टर करना पड़ता है, और सर्विसेज लेता हूँ तो सर्विस के लिए भी रजिस्टर होना पड़ता है. हाँ या ना? सो दैट एंटायर थिंग, इनडायरेक्ट एरियाज, ओके, हैज बीन क्लब्ड इनटू वन रजिस्ट्रेशन, दैट इज जीएसटी. ओके, अलॉन्ग विद दैट, यस, ये रेट डिफरेंस डेफिनेटली है, लेकिन ये रेट डिफरेंस एक ही है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैं ये डिवाइस लेने जाता हूँ मार्केट में, सो इट इज़ फॉर 12%. महाराष्ट्र में वैट में 12% चार्ज होता है. एमपी में जाऊंगा तो यही प्रोडक्ट का 15% चार्ज करेंगे. हाँ या ना? यानी कि अगर मैं कहीं पे मीन्स बिजनेस कर रहा हूँ मल्टी स्टेट्स के अंदर, तो मुझे कितने रेट्स याद रखने पड़ेंगे? सारे स्टेट्स के याद रखने पड़ेंगे. दैट कॉम्प्लिकेशन हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हैविंग ओनली वन टैक्स रेट फॉर वन प्रोडक्ट. ओके, बीट एनी टैक्स. सो यानी कि कोई भी जोग्राफीज जो है, यानी कि स्टेट बाउंड्रीज जो है, वो सब कैंसिल आउट कर दी है. वन नेशन वन टैक्स. ओके, आज उसके डीप इनसाइड में जाएंगे तो मेरा थर्ड पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे कि सीमलेस, यानी कि लेविड ऑन ऑल दी सप्लाईज विद सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट. सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे काफी सारे ट्रेडर्स रहेंगे. सिर्फ ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स नहीं. ट्रेडर्स है यहाँ पे कोई? सब मैन्युफैक्चरर्स है? ब्यूटिफुल. ट्रेडर्स, यस, वन और टू. यस, तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेडर्स दुनिया में जाए, ओके, तो ट्रेडर्स कभी भी ये जो हम लोग मैन्युफैक्चरर्स होके जो शायद एक्साइज लगाते हैं, क्या वो ट्रेडर्स उसका बेनिफिट ले पाते हैं? नहीं. ओके, ये एक्साइज उनके कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाता है, राइट? ओके, तो ये कॉस्ट एक्चुअली बेयर कौन करता है फाइनली? एंड यूजर. ओके, क्योंकि ये एक्साइज एक बेनिफिट की तरीके से आगे फ्लो नहीं हुआ है इन दी चेन, जिस तरह से वैट फ्लो हुआ था. हाँ या ना? नाउ दिस एक्साइज, ऑल द टैक्सेस, जीएसटी भी ले लो, ओके, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. ओके, जहाँ पे मीन्स सब मैन्युफैक्चर से लेके से एंड यूजर तक ये सीमलेसली ट्रांसफर, क्रेडिट ट्रांसफर होता रहेगा. अच्छी बात है. सो दैट मीन्स एवरी पर्सन ओवर हियर विल बी बेनिफिटेड बिकॉज ऑल द कॉस्ट ऑफ गुड्स वुड कम डाउन टू अ गुड लेवल. कॉस्ट नहीं होगा ना,
एक्साइज जो एक कॉस्ट बन के टैक्स पे टैक्स लगता था, एक्साइज के ऊपर भी वैट लगाते हैं हम लोग, इनवॉइस बनाते हैं ना, तो एक्साइज के ऊपर भी वैट लगाते हैं. ओके, दैट इज टोटली एलिमिनेटेड बाय दैट थर्ड पॉइंट. ओके, दैट की कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा. ओके, इट टॉक्स अबाउट सेकेंड थिंग. Let's talk about, these are 5 major points in which GST is based. Okay, the second point talks about destination based tax. Can somebody help me to understand what is destination based tax जो GST promise कर रहा है या बात कर रहा है? Point of manufacturing unit. Okay. Where the final product is going to be consumed is the destination. That tax will be applied on the product rather than what right now is the manufacturing state where it is applied. Brilliant. The word you said is that state. Okay, यानी कि आज हम लोग देखने जाते हैं तो कभी भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम लोग वेलकम करते हैं कि आप महाराष्ट्र में आइए या गुजरात में आइए. ओके, बेस क्या है कि मीन्स जो कंट्री जो स्टेट के वहाँ पे प्रोडक्शन या एक्टिविटी ज़्यादा होगी उन लोग के वहाँ पे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होंगे, है या ना? ओके, वेयर एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के अंदर ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, जहाँ पे कंजम्पशन स्टेट विल गेट द मैक्सिमम रेवेन्यू. Consumption state will get the maximum revenue, okay, and that will be defining the future of that state. Now, moreover, इसके अंदर थोड़ी सी नाराजगी हो गई थी. याद आ रहा है आप लोग को कि स्टेट्स अग्री नहीं हो रहे थे, तो जो भी लीडिंग स्टेट्स थे वो लोग कहते थे कि हमारा लॉस होगा. ओके, हम लोग इतना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम लोग ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो जो रेवेन्यू हम लोग को मिलने वाला था, हम लोग ने फोरकास्ट किया था, वो हम लोग को फ्यूचर में जब नहीं मिलेगा, ओके, तो वी विल बी एट अ ग्रेटर लॉस. इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में तो एक बार कॉस्ट लग जाता है, लेकिन उसको मेंटेन करने भी कॉस्ट लगता है, हाँ या ना? एग्जैक्टली, नाराज हो गए थे. ओके, एंड देन वी गॉट द न्यूज़ दैट कि तो हम लोग कुछ कॉम्पनसेशन के बारे में बात शुरू हो गई पार्लियामेंट में. ओके, एंड उन्होंने कहा कि भाई डोंट वरी, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे हम लोग 1 साल जो भी आपका नुकसान रहेगा वो आपका भरपाई कर देंगे. अच्छी बात, 1 साल से कोई खुश होता है? Okay, so it landed up into 5 years. Okay, until 5 years the government will compensate the leading states, okay, for this change of destination based tax model. Okay, यानी कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें एलिमिनेट कर दी, जैसे कि जो हम लोग छोटे मोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे, जैसे कि नैनो प्लांट कहाँ पे डाले, महाराष्ट्र में डाले में गुजरात में डाले, हाँ या ना? Friends, I'm trying to relate some points which I'm writing on this slide with the news which we are reading. Okay, आज मैं गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि जब मैं वो भी रीड कर रहा था ना, जब वो न्यूज़ आ रहे थे, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था. ओके, बट नाउ हियर यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने की वजह से काफ़ी कुछ क्लैरिटीज आ रही है कि वो सब क्या डिस्कशंस चल रहे थे. नाउ बेस्ड अपॉन दैट वो आपकी डे टू डे लाइफ में किस तरह से चेंज होगा. डे टू डे लाइफ में कुछ चेंज होना चाहिए तो ही मैं सुनूँ ना, वैसे आपका वही कंडीशन है. यस, ये कंडीशन जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको कौन ऑर्डर प्लेस कर रहा है, आपको सप्लाई के लिए कहाँ पे बोल रहा है. ओके, बेस्ड अपॉन दैट आपके टैक्सेस एप्लीकेबल रहेंगे. बेस्ड अपॉन दैट, जैसे कि अगर मैं गोवा में रह के आपको बोलूँ कि आप ये प्रोडक्ट्स जो है नागपुर में ट्रांसफ़र कीजिए, तो ये बिटवीन द स्टेट्स हुआ है या विद इन द स्टेट हुआ है, क्या कहोगे आप लोग? बॉम्बे से नागपुर में गया है, एक ही स्टेट हुआ. ओके, आंसर नहीं दे रहा हूं, सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं. ओके, कि मीन्स इस तरह के सब टर्मिनोलॉजीज आएंगे विथ विच वी हैव टू एड्रेस इट इन आवर जीएसटी रेजीम. ओके, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट्स गेटिंग क्लियर टू अस नाउ कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. कंजम्पशन, जो स्टेट कंज्यूम करेगा उसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा. Fair enough. So moving on to the fourth point, yes, value addition which was there in VAT also. So I'm not going more deep inside it. And the last one, the best relaxation for chartered accountants का हो या businessman का हो, कि means multiple states में multiple registrations करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे है एक में ही. जैसे कि एक स्टूडेंट, यहाँ पे कोई CA स्टूडेंट रहेंगे, ओके, वो लोग कहेंगे कि भाई मुझसे 3 लॉ पढ़ने पड़ेंगे, VAT, एक्साइज, सर्विस टैक्स. उसके लिए कितना रिलीफ हो गया कि उसको अभी एक ही लॉ पढ़ना पड़ेगा. एक बिजनेसमैन के लिए कि मीन्स आज स्क्रूटनी आएगी तो एक ही डिपार्टमेंट से आएगी, ज़्यादा कोई डिपार्टमेंट परेशान नहीं करेंगे.
ये भी ये डिपार्टमेंट से भी आया, ये डिपार्टमेंट से भी आया, इनको भी आंसर करो, अलग अलग तरीके से आंसर करो, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आंसर करना जरूरी होता है, राइट? Now only one department, and that too one thing which is very clear in GST, it is purely technology driven system, pure technology driven system, wherein like you might not have to even see who is your assessing officer, कौन सेल्स टैक्स ऑफिसर है, कमिश्नर है, आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यू विल बी टॉकिंग कंटिन्यूअसली विद द जीएसटी सिस्टम रादर देन टॉकिंग टू एनी ह्यूमन, rather than talking to any human. Okay, so when it is interaction with system, that means you need to provide a lot of information to them, transparency honi zaruri hai. Okay, so based upon all these things, okay, the GST has been formed. Okay, so let's seeing this 5 major pillars of GST, let's see ahead that ki what major things we are covering in today. It's a simple tax structure, yes, क्योंकि 3 को मर्ज करके एक ही कर दिया है, कैस्केडिंग इफेक्ट रिड्यूस कर दिया, जिसका मैंने एग्जांपल अभी बताया आपको, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, यस डेफिनेटली, एंड इंक्रीज रेवेन्यू, किसके लिए रेवेन्यू इंक्रीज होगा? बस सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, ऑब्वियसली नहीं, लेकिन अगर जब हम लोग कह रहे हैं कि कैस्केडिंग इफेक्ट अगर रिड्यूस होने वाला है तो डेफिनेटली मुझे भी फायदा होगा, इसके ऊपर जो एक्साइज का कॉस्ट लग रहा था, ओके, आज वो बेनिफिट पास ऑन होते होते मुझे भी आएगा, मिलेगा, हाँ या ना? Definitely it is for us also benefit. They cannot think about benefit of only one fraternity, that is the government. Okay, every stakeholders will be benefited. Okay, so yes, this was our whole structure when like being into federal economy. Federal economy what we talk about like एक country के अंदर country है. Okay, इंडिया में country के अंदर country है, जैसे कि means country का एक law लगता है और साथ में एक state का भी law लगता है. Okay, so both have their laws. So central taxes were excise, service tax, additional excise duty, surcharge, CVD, countervailing duty, शायद कुछ लोग import करते रहेंगे, okay, and SAD, special additional duty. और state के लिए जो भी हम लोग applicable रहते थे, जैसे कि VAT, CST, purchase, octroi, हमारा favorite है ना हमारा, बस छोड़ो octroi है, LBT से परेशान हो गए थे हम लोग, okay. So these all things are getting eliminated to a great extent. Okay. Now, so how they are getting eliminated? Okay. Now the new picture has coming to you is that is the CGST, SGST and IGST. तो ये taxes जो खत्म होने वाले हैं, okay, इसकी जगह पे अभी क्या कोई दूसरा आएगा? तो दूसरा कौन था? GST. करेक्ट है? GST आने वाला है. लेकिन GST को भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए ओके ये जो स्पेसिफिक अकाउंट्स है, यानी कि कुछ रेवेन्यू जो सेंट्रल को मिलते थे, कुछ रेवेन्यू जो स्टेट को मिलते थे, वो अभी भी चालू होना जरूरी है ना, कंटिन्यू होना जरूरी है. ओके, तो उस एंगल से उन लोग ने किस तरह से किया है कि जितने भी सेंट्रल टैक्सेस थे, ओके, दैट गॉट सब्ज्यूम्ड इनटू CGST, सेंट्रल GST. ओके, नाउ यानी कि सर्विस टैक्स, एक्साइज, एडिशनल, यानी कि फॉर एग्जांपल आज आप लोग आपका अगर 30 जून को अपना बुक्स क्लोज करते हो, 30 जून को अगर आप अपना बुक्स क्लोज करते हो तो आपके पास शायद कुछ एक्साइज रहेगा, एक्साइज का बेनिफिट लेना बाकी रहेगा, तो जीएसटी में तो उसका बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा, हाँ या ना? कैसे? एक्साइज तो गायब. ये ट्रांजिशन के टाइम पे जो आपका जो भी एक्साइज बचा हुआ है दैट विल बी कॉल्ड एज CGST. ओके, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज एक्साइज इट विल बी कॉल्ड एज CGST. ओके, अगर वैट कुछ इनपुट वैट लेना बाकी रह गया है, ओके, देन दैट इट विल बी कॉल्ड एज SGST. ओके, स्टेट GST. ओके, सो दीज ऑल टैक्स विल बी गेटिंग सब्ज्यूम्ड इनटू SGST and these many taxes would be यानी कि CST और CVD और SAD that will get subsumed into IGST. वैसे IGST यानी क्या? इंटरस्टेट इंटीग्रेटेड GST. ओके, इंटीग्रेटेड GST. लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये यूज होगा जब आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो. फेयर इनफ. So let's see that कि how exactly these things will help us. But before going into it, थोड़ा सा ये भी मैंने कहा था कि कुछ टैक्सेस हमारे GST रेजिम में साथ में नहीं आए हैं, तो वो भी देख ले एक बार. ओके, सो
these many taxes have not come along with GST. Okay, custom duty जैसे था वैसा ही रहेगा, export duty जैसा था वैसा रहेगा. And these are the state taxes which will be remaining as it is. Okay, they will not be subsumed inside the GST. But don't you think ये इतने ज़्यादा important नहीं है? टोल टैक्स ये सब साइडलाइंस हो जाते हैं. ओके, और रादर काफ़ी स्टेट्स तो इसलिए प्रिफर कर रहे हैं कि टोल टैक्स तो निकल जाए, रोड टैक्स भी निकल जाए. ओके, बट स्लोली एंड स्टेडीली एज ग्रोथ सेज, ओके, दीज टैक्सेस विल आल्सो बी रिमूव्ड. ओके, now here stamp duty, electricity duty, stamp duty and registration fees, these things remain as it is, no change into these laws. एक और एक चीज़ है, जिस तरह से कुछ टैक्सेस जीएसटी के बाहर है, उस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स भी है जो जीएसटी के बाहर है. ओके जी, यस, जैसे कि पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट्स, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पावर सेक्टर. शायद अंबानीज और मालिया से मीन्स बात नहीं हुई रहेगी, मीटिंग नहीं हुई रहेगी जीएसटी के टाइम पे, तो उसके वजह से ये प्रोडक्ट्स बाहर रह गए हैं जीएसटी के. Okay, but yes, slowly and steadily, years coming ahead, okay, these products will also come into the regime of GST. Okay, आज अगर देखने जाए तो ये इनके ऊपर यानी कि 1 जुलाई से कौन से टैक्सेस लगने वाले हैं, दे आर येट टू कम विद इट कि कौन से टैक्सेस लगेंगे, लेकिन जीएसटी नहीं लगेगा. फेयर इनफ, थोड़ा बहुत. हाँ जी, यस. Yes, definitely. Okay, so yes, these are some of the products which are not getting covered under the GST regime. Okay, now so let's determine the taxes. Okay, जो हम लोग ने CGST, SGST और IGST देखा, वो मेरे डे टू डे वर्किंग में किस तरह से आए. जिस तरह से मीन्स यहाँ पे बिजनेस ओनर्स भी आए और उनके वर्कफोर्स भी साथ में आए हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास जो भी एक जो ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट रहेगा, जैसे कि हमारा इनवॉइस, ओके, द इनवॉइस, ओके, वो किस तरह से हम लोग उसके ऊपर चार्ज करने वाले हैं, मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ चार्जेस. फॉर एग्जांपल, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों महाराष्ट्र के अंदर है, तो हम लोग आज क्या चार्ज करते हैं? वैट. परफेक्ट. ओके, लेकिन अभी वैट और एक्साइज, ओके, तो उसकी जगह पे अभी हम लोग चार्ज करेंगे CGST और SGST. यानी फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट के ऊपर 18% टैक्स लगने वाला है जीएसटी. ओके, तो अगर ये प्रोडक्ट 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख के ऊपर 9% CGST लगेगा एंड 9%. परफेक्ट. ओके, तो इस तरह से मुझे मेरा इनवॉइस दिखने वाला है. ओके, नाउ सो लेट्स सी दैट कि अगर मेरा अलग स्टेट्स में होता है ट्रांजैक्शन तो किस तरह से होगा. इफ इट्स महाराष्ट्र एंड Gujarat, okay, so what we are charging today? CST? Only IGST. Only IGST. यानी कि अगर 18% है तो एंटायर 18% is IGST. Sorry? नो, आप जो वहाँ पे कर रहे थे यानी कि विद इन महाराष्ट्र, ओके, उसके अंदर आप बाइफर्केट करेंगे CGST और SGST के अंदर. वेयर एज व्हेन आई एम सेलिंग टू गुजरात, ओके, दैट टाइम आई विल बी सेलिंग विथ ओनली IGST एज द सब्जेक्ट. व्हाट इज द रीजन? ओके, रीजन ये है कि मैंने ज्योग्राफीज तो हटा दी है, लेकिन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के वजह से नाउ आई हैव टू कलेक्ट द टैक्स एंड गिव इट टू द रिसिपिएंट और कंजम्पशन का स्टेट. ओके, सो वेन एवर आई एम सेलिंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात, देयर नीड्स टू बी सम अकाउंटेबिलिटी कि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है. तो वो सेग्रीगेट करने के लिए या उसको सेपरेट करने के लिए दे विल बी कलेक्टिंग टैक्स इन द नेम ऑफ IGST. ओके, एंड दिस IGST विल बी जो भी रेवेन्यू इसके अंदर कलेक्शन होता है, ओके, दैट वुड बी एक लॉ अप्लाई होगा. देयर इज वन मोर लॉ विच हैज कम विद इट, दैट इज द कॉम्पनसेशन लॉ.
ओके तो कॉम्पनसेशन लॉ के अंदर जो भी स्टेट इसके अंदर बेनिफिट जो घुमा रहे हैं, okay, those states which are going to feel the deficit because of the destination based tax, that will be compensated through this account, that is IGST collection. Fair enough? देखो, I'm not worried about why government is doing like this. I'm worried about कि मेरा invoice किस तरह से रहने वाला है. Okay? इंटरनली वो गवर्नमेंट कुछ भी करे, ओके, क्योंकि मेरे ट्रांजैक्शन पे ओके जीएसटी नंबर किसका रहेगा? महाराष्ट्र का रहेगा, और जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूं वो गुजरात का रहेगा. दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर द डिपार्टमेंट टू नो दैट कि इट इज कंज्यूम्ड इन विच स्टेट. सो ये जीएसटी, ये जो IGST लगा है, फॉर एग्जांपल 18,000 रुपीज उन्होंने कलेक्ट किया है, उसमें से कितना वो महाराष्ट्र को दे और कितना गुजरात को दे, वो उनका हेडेक है, वो उनका हेडेक है. फेयर इनफ? हाँ, ब्यूटीफुल. ओके, जो हम लोग ने आज रजिस्ट्रेशन किया, सब लोग ने रजिस्ट्रेशन किया है ना? डेफिनेटली. तो सब लोग ने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसके अंदर 27 पहले आया रहेगा, 15 डिजिट का नंबर रहेगा, पैन नंबर और लास्ट में 3 डिजिट. ओके, तो ये जो भी नंबर है, ओके, ये एक ही नंबर CGST, SGST और IGST के लिए, तीनों के लिए है. फेयर इनफ? इसके लिए आपको अलग अलग विंडोज पे जाने की जरूरत नहीं है. जैसे कि मैं एक्साइज के लिए अलग विंडो पे जाता था, सर्विस टैक्स के लिए अलग विंडो पे जाता था, या फिर मैं वैट के लिए अलग विंडो पे जा रहा था. इस तरह से मुझे अलग अलग जगह पे नहीं जाना है. दिस इज वन टैक्स ओनली, दिस इज वन विंडो ओनली, दैट इज GST. फेयर इनफ? परफेक्ट. ओके, नाउ सी वी हैव many good seminars which are going across, okay, at various places with my channel partners and CA forums, जहाँ पे हम लोग सिर्फ यही दो जो स्लाइड है ना, इसके लिए हम लोग करीबन 2 आवर्स लेते हैं. याद है मैंने सेशन स्टार्ट करने के पहले एक ट्रांजैक्शन आपको बताया था कि मैं गोवा में बैठा हूं और मैं मुंबई के डीलर को कह रहा हूं कि मेरे एक नागपुर के एक डीलर को आप सप्लाई कर दीजिए. करेक्ट है? करेक्ट है? इस तरह के मल्टीपल सिनेरियोस और हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं वो सेशंस के अंदर, ओके, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट आई शुड चार्ज. नाउ सर, योर गुड नेम? Ankit. Okay, so Ankit is selling to Darshan. Okay, sorry, Darshan being in Gujarat, he is telling to Ankit, Ankit, please ship to somebody, Narvekar family in Nagpur. Okay, Narvekar Enterprise. Now Ankit Enterprise, what bill he will be making with CGST, SGST or IGST? What he will make? How many CGST, SGST? Beautiful. How many IGST? ओके, जो बाकी जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया मीन्स वो बिजनेस छोड़ रहे क्या? नहीं, बोल रहे कि एवरेज निकाल लो, जो भी रहेगा वो लगा दीजिए. ओके, सो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. फेयर. ओके, नाउ अंकित विल शिप द मटीरियल टू नागपुर, but he will bill to me. He will bill to me and he will charge me IGST. हाँ या ना? गुजरात वाला हूं, बाउंड्री क्रॉस कर दी है, ओके, एंड आई विल चार्ज टू दैट नार्वेकर एंटरप्राइज IGST अगेन. गेटिंग? नाउ आपको थोड़ा सा एसेंस आ रहा है कि मीन्स मैं किस तरह से वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के ऊपर एम्फोसिस कर रहा था. It's not about billing also, okay, it's more about consumption. The right word is consumption. Billing also. In one sense, yes, billing. I have multiple examples in which billing also may change. Okay. Confuse करूँ थोड़ा सा और? हाँ? ये क्लियर हो गया पहले? ये क्लियर हुआ? यहाँ पे अंकित एंटरप्राइज जो मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र में शिपमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो बिलिंग रूट हो रहा है थ्रू गुजरात. ओके, तो ये एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है जहां पे IGST चार्ज होगा. क्लियर? सिंपल? सिंपल? ओके, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हाउ आवर बिलिंग शुड बी हैपनिंग. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन हियर. ओके, काफी लोगों ने इसके बारे में सुना रहेगा. सी फॉर्म नाम सुना है?
बहुत बड़ा सर दर्द है ना, कुछ लोग मुस्कुराने लगे। हाँ भाई, सी फॉर्म से मीन्स एक हेडेक वाला काम है। दिस इज टोटली गेटिंग एलिमिनेटेड। कोई भी टाइप के फिजिकल फॉर्म्स अभी नहीं रहने वाले हैं। दैट मीन्स नाउ व्हाट विल हैपन, पहले तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसके लिए सी फॉर्म की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरे भी फॉर्म्स है जैसे कि एफ फॉर्म। एफ फॉर्म किसके लिए होता है? इंटर ब्रांच ट्रांसफर, वो भी निकल गया, वो भी निकल गया। सो दैट मीन्स इफ अंकित एंटरप्राइज इन गुजरात, अंकित एंटरप्राइज इन गुजरात, okay, if you are transferring goods from Mumbai to Gujarat in Ahmedabad, okay, you don't have to give me any C form, F form and all those stories. Only bill to me, okay, with taxes, IGST, with IGST, okay, and फिर बाद में मैं सेल करूंगा तो मैं ये IGST का सेट ऑफ ले सकता हूं इन गुजरात। हाँ, correct, correct, correct. Now see, very good friends, you are all there with me. अंकित एंटरप्राइज ने अंकित एंटरप्राइज अहमदाबाद में बिल किया विथ IGST, ओके। और मैं, सर आपका नाम? अमित। अमित एंटरप्राइज गुजरात में ही, बड़ौदा में, मैं आपको बिल कर रहा हूं CGST और SGST, करेक्ट है? करेक्ट है। तो ये सेट ऑफ अभी देखने में तो ऐसा लगता है कि ये सेट ऑफ नहीं हो सकता है, ओके। मेरा इनवर्ड कितना था? IGST, और मेरा आउटवर्ड क्या था? SGST और SGST और CGST, करेक्ट है? सेट ऑफ नहीं होगा, करेक्ट। दिस फियर, दिस प्रॉब्लम दे हैव रिजॉल्व्ड इन GST, मच मोर बेनिफिशियल, ओके। हाउ? क्वेश्चन मार्क है ना, तो आगे की स्लाइड में देखते हैं, ओके। बट ये क्लियर है, ओके। अगर वैट वाला यानी कि सिर्फ लोकल वाला जो था तो उसके लिए 2 टैक्सेस लगेंगे, और इंटरस्टेट के लिए ओनली 1 टैक्स, ओके। सो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ओके। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। सेंट्रल GST मैंने आपको सेल किया था अमित जी, ओके। मैंने आपको CGST और SGST लगाया था, याद आ रहा है अब भी, ओके। तो मैं ये सेट ऑफ कर सकता हूं, दिस इज इनपुट। मेरे पास इनपुट CGST है ही नहीं, मेरे पास इनपुट CGST नहीं है, ओके। लेकिन मुझे आउटपुट CGST तो पे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने सेल किया था अमित जी को, ओके। नाउ लेकिन पहले वो एग्जाम्पल पे जाने के पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इनपुट CGST can be set off against CGST, okay. It can be again set off against IGST, okay. SGST against SGST। वैसे देखने में तो ये बहुत सारे बॉक्सेस लग रहे हैं ना। हमारा पानी कम हो गया, अपन सर थोड़ा सा पानी सप्लाई कर दीजिए, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है अभी। नाउ सिंपल रखते हैं, ओके। सिंपल एग्जांपल की तरह लगते हैं। एक्साइज से सेट ऑफ हो सकता है, एक्साइज से सेट ऑफ, तो इसको एट प्रेजेंट फॉर द टाइम बिंग एक्साइज रख लीजिए। एक्साइज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एक्साइज, इसको वैट समझ लीजिए। सो वैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट वैट, बढ़िया, इतना क्लियर। नाउ एनी टाइम एक्साइज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट वैट टुडे, तो यस, ये दोनों कभी भी सेट ऑफ नहीं होंगे, ओके। यस, लेकिन उसके सामने अगर मेरे पास कोई भी IGST है, ओके, तो उसके साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। नाउ हमारा जो केस था, ओके, हमारा जो केस था, इनपुट अंकित इनपुट IGST लगा था, आपने मुझे इनपुट IGST लगाया था, तो मेरे पास बकेट में ये था, ओके। इन्होंने मुझे ये डिवाइस दिया था 1 लाख रुपए का, ओके। आपने मुझे 18,000 रुपया चार्ज किया IGST, करेक्ट, परफेक्ट, ओके। नाउ आई हैव 18,000 IGST ओवर हियर। नाउ मैंने सेल किया CGST और SGST के अंदर, तो ये तो खाली है मेरा,
ये खाली है. बट the best part is that कि I can set off against CGST and I can set off against SGST also. यानी कि अगर मैंने आपको सेल किया है, ओके अमित जी मैंने आपको सेल किया है और मैंने 18,000 जो इनपुट था, अभी मैंने कुछ प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा आपको, तो आप समझ लीजिए कि 20,000 हुआ. ओके 10,000 SGST, 10,000 CGST. तो वो 10,000 I can set off against the 18,000 what he has charged me. Getting. ये कभी भी पहले हुआ था, कभी भी ये पहले नहीं हुआ है. कभी भी जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन या इंटर स्टेट टैक्सेस लगे थे CST, वो कभी भी सेट ऑफ के लिए अवेलेबल नहीं थे. दैट इज दी वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ GST, दैट की मीन्स वी विल बी एबल टू सेट ऑफ दिस टैक्सेस. ओके फेयर इनफ. थोड़ा सा हेवी फ्रेंड्स, जब मैंने पहली बार सुना काफी कुछ बाउंसर गया था. ओके but yes, slowly and steadily you will get to link with the transactions what you are making. आज के बाद अगर आप जो भी transactions जाके करोगे इनवॉइस के अंदर, ओके तो आप ये एंगल से सोचेंगे कि भाई ये बिल के अंदर क्या लगने वाला है. फेयर इनफ. इस तरह से आपका जो प्राइसिंग पॉलिसी रहेगा वो भी आप डिसाइड कर पाओगे. करेक्ट? थोड़ा बहुत. ओके यस. बाय दिस स्लाइड आप लोग ये समझ सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपके बिजनेस के लिए क्या होगा? सॉरी एग्जैक्टली. अभी तक जो आप एक स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शंस कर रहे थे बिकॉज ऑफ CST और ये सबको आपको बेनिफिट नहीं मिलता था, आज आपके लिए सारी बाउंड्रीज ओपन है. यू कैन ट्रांजैक्ट बिटवीन एनी स्टेट इन इंडिया. तो आज आपका मार्केट एक मुंबई या एक महाराष्ट्र या उस स्टेट पे लिमिटेड नहीं रहा. नाउ यू कैन ट्रांजेक्ट टू एनी स्टेट, बैंगलोर हो कहीं पे भी हो, एंड यू कैन गेट द बेनिफिट. तो आपका मार्केट साइज बढ़ गया है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं. तो ये एक बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं जो GST आपके लिए लाएगा. थैंक यू. फेयर इनफ. सची फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट जो है 1 लाख में मुझे पेरेंट से मिल रहा था, प्रिंसिपल कंपनी से 1 लाख रुपये में ये प्रोडक्ट मिल रहा था. मैं ये महाराष्ट्र में सेल करता था, ये मैं महाराष्ट्र में सेल करता था. ओके विद सम एडिशन ऑफ टैक्सेस. ओके मैं महाराष्ट्र, अभी यही प्रोडक्ट अगर MP में, यही प्रोडक्ट अगर MP में भी 1 लाख में लैंडिंग कॉस्ट है उसका. ओके लेकिन वहां पे वो लोग जो भी टैक्स लगाएंगे उसका बेनिफिट आगे लोग ले पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से सेल करूंगा तो मैं CST लगाऊंगा, जिसका बेनिफिट जो बायर है वो ले नहीं पाएगा. हाँ या ना? तो आज यही रौनक समझा रहे हैं कि यानी कि मेरे पास अभी ज्योग्राफीज का कोई बाउंड्रीज नहीं है, मैं जो चाहे वहां जहां पे चाहे मैं सेल कर सकता हूं. ओके दैट इज दी वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन दिस GST, दैट इट विल हेल्प टू बिजनेस टू ग्रो. फेयर इनफ. स्लोली एंड स्टडीली. Okay, so that covers the basic areas about like what is GST, why GST, okay, and it talks about the input credit, okay, और जी tax charges, यानी कि मेरा invoice किस तरह से दिखने वाला है. Export GST. एक्सपोर्ट के लिए हम लोग को कोई भी GST चार्ज, नॉर्मली आज भी हम लोग कोई ड्यूटी चार्ज नहीं करते हैं. ओके तो एक्सपोर्ट इज रिमेनिंग एज इट इज. ओके लेकिन हाँ कुछ बेनिफिट्स एक्सपोर्टर्स को दिए हैं. ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं परचेज करता हूँ, मैं कुछ परचेज करता हूं तो उसके ऊपर मुझे शायद कोई GST चार्ज किया रहेगा किसी ने. ओके और मैंने सेल किया तो कोई भी GST चार्ज नहीं किया था. हाँ या ना? ओके तो मेरे पास इनपुट GST काफी कुछ पड़ा हुआ है, तो वो मैं रिफंड के लिए क्लेम कर सकता हूं. ओके जो फर्स्ट ड्राफ्ट लॉ आया था, जो पहला ड्राफ्ट लॉ आया था, उसके अंदर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि विद इन 90 डेज वी विल पे बैक योर रिफंड. ओके हमारे एक्सपोर्टर्स थोड़े, उन्होंने कहा कि भाई नहीं ये नहीं चलेगा, तो सेकेंड ड्राफ्ट लॉ जो आया उसके अंदर कहा कि विद इन 60 डेज यू विल बी गेटिंग योर रिफंड. ओके तो एक्सपोर्टर्स के लिए ये बेनिफिट है. इनफैक्ट वो लोग बहुत अच्छे लिबरल है एट प्रेजेंट कि आपने जिस तरह से डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, ओके जैसे ही आप सबमिशंस कर देंगे, ओके रिटर्न्स फाइल कर देंगे, तो विद इन 7 डेज दे आर सेइंग, ओके एंड विद इन 7 डेज दे विल गिव यू दी 90% ऑफ योर रिफंड and 10% they will give you after verifying all your documentations. तो कुछ लॉज है, लेकिन at least we are having a very responsive government.
ओके तो इसलिए वी नीड टू रेज सम पॉइंट्स इफ वी फील दैट की विच मे हैम्पर माई बिजनेस, तो डेफिनेटली पॉइंट्स रेज करने ज़रूरी है. Exactly. SEZ is the unit which you can consider that कि वो out of India ही है. Okay, all the SEZ यानी कि SEZ यानी अपना सीब्स. Okay, अपना जो सीब्स है यहाँ पे. Okay, for example वो ही सीब्स के बाहर एक स्टेशनरी शॉप है. Okay, स्टेशनरी शॉप अगर उन लोगों को कुछ भी बिल कर रहा है तो वो जो भी GST चार्ज करेगा, okay, तो उसके लिए वो एक आउटसाइड दी कंट्री सेल कर रहा है, उस तरह से वो कर रहा है, या आउट ऑफ द स्टेट कर रहा है, यानी कि वो IGST उसको लगा के सेल करेगा, नॉट इवन SGST, CGST एंड SGST, यानी कि वैट वाला भी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, वो IGST का ट्रांजैक्शन करेंगे और वो सीब्स वाले उसका बेनिफिट ले सकते हैं बाय दैट रिफंड केस. हाँ, CA will help you for that. Okay, in fact your own records will help you to decide like what to do. Okay, yes sir. Getting removed. Oh. Yeah, freight. हाँ, freight charges के ऊपर GST लगेगा, freight charges के ऊपर GST लगेगा, लेकिन और एक चीज़ है, अब तक सेकेंड ड्राफ्ट लॉ तक अभी तक वही है. आई टेल यू अबाउट वन केस. ये दो प्रोडक्ट है, इसके ऊपर 18% है और इसके ऊपर 12% है. ओके, ये दोनों मैं आपको शिप कर रहा हूं, एक टेम्पो जा रहा है आपके वहां पे. ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ करीबन 1000 रुपीज. ओके, तो ये 1000 रुपीज के ऊपर GST लगेगा. कौन सा रेट लगेगा? हाँ, बहुत अच्छे हो आप लोग. यस, गवर्नमेंट सेज हायर. ओके, 18%. ओके, वेयरएज हम लोग ने वैट के अंदर देखा था कि वी कैन अपॉर्शन दैट कि अगर वो ट्रक के अंदर 50,000 का माल इसका जा रहा है और 50,000 का माल इसका जा रहा है, तो वो जो 1000 रुपीज है उसके ऊपर 500 पे 12% लगता था और 500 के ऊपर 18% लगता था. हाँ या ना? शायद हम लोग इसी तरह से बिल बना रहे थे ना. यस सर. हाँ, फिर बाद में यू लैंड अप इनटू मेकिंग 2 बिल्स, बट इट वुड बी स्लाइटली कंबरसम दैट कि टेम्पो तो एक ही जा रहा है. करेक्ट? So slightly cumbersome. Your tax consultant will be in a better position to help you on this regards. But I really feel that if such type of points are there to be raised, okay, you can definitely raise it. And if it is small petty amounts, then we can forgo it. Yes, sir. So as you said, in export, Hmm. we cannot offer any. There we cannot. It will be as it is. What about I-form? If C-form is not there, I-form is also not there. automatically same as you said. For export. सी फॉर एक्सपोर्ट डायरेक्टली जो रहेगा ना, जैसे कि आई फॉर्म के बारे में मुझे नहीं मालूम ज़्यादा, लेकिन एच फॉर्म निकल जाएगा. एच फॉर्म विच इज कॉल्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स. ओके, तो वो सब निकल जाएगा क्योंकि एवरीथिंग वुड बी ट्रैक थ्रू योर GST नंबर. योर GST नंबर वुड बी मच मोर स्ट्रॉन्गर इनफ टू डिसाइड वेदर यू आर गिविंग टू एन एक्सपोर्टर और नॉट, और वेदर यू आर गिविंग टू अ SEZ यूनिट और नॉट. ओके, सो विद दैट दे विल बी एबल टू सी दैट कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी टैक्सेशन, तो ये फॉर्म्स की भी जरूरत नहीं रहेगी. वैसे आज भी अगर आपने देखने जाए तो सी फॉर्म के लिए अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. हाँ या ना? आज के फॉर्म्स की बात कर रहा हूं. राइट नाउ अगर हम लोग 231 फाइल करते हैं, 231 फाइल करते हैं, तो उसके अंदर से ऑटोमेटिकली जितने भी सी फॉर्म्स इश्यू करने रहते हैं वो ऑटोमेटिक, थैंक यू, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. ओके, तो साइमल्टेनियसली ये सब डॉक्यूमेंटेशंस बहुत खत्म होने वाले हैं. ओके, यू विल गेट अ ग्रेटर रिलीफ ऑन टू इट. ओके, बट नाउ कम्स द नॉन रिलीफ पार्ट. आई टेक दिस लास्ट क्वेश्चन. या, What if you don't know the billing entity cards that were, let's say you're running a retail store. ओके, Somebody walks in and wants to buy it. हाँ. Then you apply what? हाँ. CGST, SGST or IGST? यू विल बिल विद CGST एंड SGST. सिंपल. ओके, यानी कि कोई मेरे पास अभी भले दिल्ली से कोई आया है यहाँ पे, ओके, मेरे काउंटर से ये डिवाइस लेके जाता है,
तो मुझे मालूम नहीं, वो अपना कुछ डिटेल्स देना नहीं चाहता है, तो मैं CGST SGST चार्ज करूंगा उसे. Okay, so here we are talking about the registration part. In the second area, types of returns, invoice matching, and input tax credit. So till now we have seen the different GST areas. Okay, now we will be seeing the most critical areas of GST. Okay, and that is the type of return, invoice matching, and input tax credit. Now registration, definitely we all have done, and we don't know the threshold limits. Okay, 10 lakh and 20 lakhs. Everybody are beyond this, so definitely सब लोग ने registration, regular registration कर दिया है. Okay, composition scheme is applicable, can be applied for. Okay, जिनका 50 लाख से कम turnover है, तो वो लोग composition scheme के लिए apply कर सकते हैं. Not spending much time into this. Any clarity required on that? Yes. If their turnover is less than 50. Okay, लेकिन एक चीज है, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सॉरी, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है. ओनली कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स आर ओनली दीज टू पीपल, रेस्टोरेंट्स एंड धाबास. यानी कि अगर मैं कोई भी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हूं, ओके, तो फिर मुझे ये 50 लाख का कॉम्पोजिशन स्कीम में अवेल नहीं कर पाऊंगा. ये देखिए यहाँ पे सप्लाई नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्सेबल पर्सन एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज. अगर आप सर्विसेज में हो तो सॉरी. यस, क्लियर? हाँ, correct. Sir, in this case, the person who is doing outsourcing part, okay, यानी कि आपने जॉब वर्क किसी और को दिया है, okay, उसका टर्नओवर अगर ये 50 लाख के नीचे है, okay, अगर वो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में है, तो आई एम सॉरी, ही माइट नॉट बी एबल टू अवेल दिस कॉम्पोजिशन स्कीम. एंड इसके अंदर थोड़े से ग्रे एरियाज है. Job work, they are reconsidering for whether registration to be taken mandatory or it's an optional. Okay, they are rethinking about this job work. Okay, so slowly I think we'll get the clarity onto the job work people कि whether वो mandatory registration है या नहीं है. But I think they are bit liberal on for job workers. These are some more mandatory. Agar if you are into e-commerce, then definitely mandatory registration is required. If you are into interstate transactions, okay, then also mandatory transactions, no composition schemes and all those things. Okay, and ये सब norms है. If you are into ISD, okay, input service distributor, ये थोड़े clauses है. Okay, अगर आपके CA आपको बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे कि whether you fall into this category or not. If you fall, see basically वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग रेगुलर GST के अंदर रजिस्ट्रेशन कर ले, तो ही वो एंड यूजर को बेनिफिट पास ऑन कर पाएंगे. दैट इज स्मॉल एंड क्रिस्प एरिया. यस सर. हाँ हाँ. Yes. So if we are selling our products online, then we have to register in each and every state. Yes. That's a marathon task. Marathon, humongous task. Humongous यानी कि मैं इतना थक जाऊंगा, यानी कि आप इसके बाद की जो स्लाइड देखने वाले हो कि कितने रिटर्न्स बनाने हैं, इट विल स्लाइटली स्क्रू अप दी लाइफ. आप सच्ची आप इतना बिजनेस स्ट्रैटेजी इतने चेंज कर देंगे. लेकिन एक चीज है, ई कॉमर्स के लिए एक अलग सा रिटर्न है. ई कॉमर्स वालों के लिए अलग सा रिटर्न है. यानी अगर आपको वो रेगुलर रिटर्न नहीं फाइल करने हैं ना, तो वो ई कॉमर्स वाला रिटर्न फाइल करना है, जिसके अंदर शायद थोड़ी आपको बेनिफिट मिल सकती है. बट यस, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि सर्विस प्रोवाइडर जिसके लिए पूरे इंडिया के लिए एक ही सर्विस टैक्स नंबर हुआ करता था. मेरे ख्याल से आप समझ गए. ओके, यानी ये ऑटोमेटेड आपने माइग्रेशंस तो कर दिए, और यहां पे आपको ये टिन नंबर मिला रहेगा, GS टिन नंबर. हाँ या ना? कैन समबडी हेल्प मी फर्स्ट टू डिजिट?
स्टेट कोड, नेक्स्ट 10 डिजिट, पैन नंबर, सॉरी पैन नंबर बोलते हैं, पैन. व्हाट इज दिस 13 डिजिट? सी जिस तरह से ज्योग्राफी हटा तो मीन्स यानी कि वो अभी मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर या वैट ट्रेडर है, उसके लिए वो नंबर नहीं है. स्टेट कोड फर्स्ट 2 है. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द 13th डिजिट. हाँ जी, देन I can have my own speed also, don't worry sir. So this is 13 digit, okay. It talks about entity code. If you are having multiple business lines, you can opt for having multiple entity codes. Okay, यानी कि मेरा एक बिजनेस ये डिवाइस बनाने का है और एक बिजनेस मेरा सर्विस प्रोवाइड करने का है. ओके, तो दो बिजनेस को मैं अलग रखना चाहता हूँ तो मैं अलग नंबर ले सकता हूँ. ओके, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है. इफ़ यू वांट दैट कि मैं 50 टाइप का बिजनेस भी एक ही 10 नंबर से करूं तो कोई ऐतराज़ नहीं है. ओके, द 14 डिजिट इज ब्लैंक. ओके, दे डोंट वांट एनी मीन्स यहाँ पे ब्लैंक रखा है, उन्होंने कुछ भी सेट नहीं किया है, मे बी फॉर फ्यूचर यूज़. और लास्ट डिजिट इट्स अ सेल्फ वैलिडेटिंग नंबर. ओके, यानी कि ये जो 14 डिजिट्स है वो अपने अपनी जगह पे प्लेस्ड बराबर है. ओके, उस हिसाब से ये लास्ट नंबर आएगा. ओके, एंड इट विल वैलिडेट योर अर्लियर 14 डिजिट्स. So that's about the registration part. Okay, now so here comes your returns. कितने रिटर्न्स आपको बताए गए थे? 5. यानी किस तरह से? क्वार्टरली एक और बाद में एक एनुअल. How many returns we are filing today? Per month? Per annum? थोड़ा बहुत 12 प्लस एनुअल, 12 प्लस एनुअल. ओके, फेयर. कुछ लोग क्वार्टरली. ओके, नाउ हियर कम्स द रिटर्न पार्ट. कितने रिटर्न्स आप फाइल करने वाले हो? सबसे पहला रिटर्न, आप लोग थोड़ी टाइम के लिए मेरे साथ जुलाई में चलोगे? थोड़ा चल लीजिए, वापस जल्दी लेके आऊँगा 10 मिनट्स में, विदिन 10 मिनट्स. जुलाई महीने में मैंने बिजनेस किया, एंड देन जुलाई, आफ्टर फिनिशिंग माई जुलाई, ओके, बाय नेक्स्ट मंथ 10th आई हैव टू फाइल माई फर्स्ट रिटर्न. बाय ओके टिल, यानी कि 1 अगस्त से लेके 10th अगस्त तक मुझे ये मेरा फर्स्ट रिटर्न फाइल करना है. एंड दैट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई आउटवर्ड्स. यानी कि जो भी सेल्स हुआ है, मैं कभी भी अभी जीएसटी रेजिम में सेल्स नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सप्लाई आउटवर्ड्स. अंकित ने मुझे ट्रांसफर किया था. ओके, दैट इज सप्लाई आउटवर्ड्स फॉर हिम एंड सप्लाई इनवर्ड फॉर मी. फेयर इनफ. ओके, तो बाय 10th सप्लाई आउटवर्ड्स के सारे डिटेल्स मुझे फाइल करने हैं, यानी कि मेरे इनवॉइसेस या जो भी है. 2A. नाउ लेट्स create an example over here. I buy from here. अमित जी यहाँ पे बैठे हैं. ओके, अमित जी से मैं बाई करता हूँ और ये फ्रेटर्निटी को, ये लोगों को मैं सेल करता हूँ. करेक्ट है? तो आपने मुझे सेल किया, मैंने इन लोग को सेल किया. तो 10 तारीख तक मुझे फाइल करना है मेरे सेल्स आउटवर्ड्स, सप्लाई आउटवर्ड्स. आप भी ओके, आप भी रिटर्न 10 तक फाइल करोगे. यानी इन्होंने जो भी फाइल किया है वो मुझे देखना है, मुझे कंपेयर करना है मेरे सप्लाई इनवर्ड के साथ. राइट? यस. ओके, तो उसके लिए डिपार्टमेंट जीएसटी पोर्टल जो है वो मुझे एक रिटर्न देगा जीएसटीआर 2A, जो मैं मेरे परचेजेस या सप्लाई इनवर्ड के साथ मैच करूंगा. ओके, यानी कि आपके ट्रांजैक्शंस जो मैंने इनवर्ड किए थे उसके साथ मैच करूंगा, रिकंसाइल करूंगा. ओके, नाउ शायद अमित जी एक इनवॉइस रह गया है. ओके, तो वो
इनवॉइस का इनपुट क्रेडिट मैं नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने 4 इनवॉइस मुझे दिए थे, उसमें से एक इनवॉइस उनसे रह गया, समझ लीजिए वो 1 लाख रुपए का है और 18,000 उसके ऊपर टैक्स लगा था, बराबर। तो ये 18,000 का इनपुट क्रेडिट मैं नहीं ले पाऊंगा। लेकिन डिपार्टमेंट बोलता है नो वरीज दर्शन, ये ट्रांजैक्शन आप ऐड कर दो और आप एक रिटर्न फाइल कर दो 15 तारीख तक GSTR 2 के हिसाब से। GSTR 2 के हिसाब से मैं ये एक ट्रांजैक्शन जो रह गया था उसको ऐड कर देता हूं और फाइल कर देता हूं डिपार्टमेंट को, तो मैं इसका क्रेडिट ले पाऊंगा शायद। 15th जब मैंने सबमिट कर दिया तो 16th को उनको एक रिटर्न जाएगा GSTR 1A। GSTR 1A अमित जी को जाएगा और वो सैंक्शन करेंगे या वो हाँ बोलेंगे कि भाई हाँ ये इनवॉइस मुझसे रह गया था, ओके नाउ आई एम एक्सेप्टिंग इट। फेयर इनफ, करेक्ट। सर तो मैं उनका फोन नंबर दे दूंगा।